Namaskar students, welcome again with this chapter number 3, the electoral politics from your civics section, in which we are discuss about the elections. Elections means when we are electing our representatives, when we give our valuable vote to the representatives, a part of election. So in this chapter we are going to the process how the elections conducted in India, what is the importance of election. Now, India is a democratic country. All knows about the India, the form of government which followed here is the democratic form. In first chapter, we have discussed about the democratic features, democratic merits, demerits. In detail, we have discussed. People rule the country in democracy. Now, people rule. It means people are elected through the election. So, election is the related topic. So according to your NCERT book, I am explaining this chapter. This chapter is electoral politics. First question is assembly election in Haryana. There is an example, the elections assembly election in Haryana. Fine. So before starting this chapter, we will read this news headlines that the time at the after midnight and acceptance crowd sitting the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. Now elections are held there and the people are waiting for result. The organizers assured the crowd that he would be here any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicles comes that way and arouse hopes that he has come. The leader of the Mr. Devi Lal. Now we are talking about the Mr. Devi Lal, chief of the Haryana uh, Sangharsh Samiti, who was addressed meetings in the Karnal to Thursday night. उन्होंने असेंबली को क्या किया था, एड्रेस किया था. The 76 years old leader is a very busy man these days. इस 76 ईयर के थे, बहुत बिजी थे. His day start at the 8 a.m. and ends with the 11 p.m. सुबह से लेकर शाम तक उनका दिन ऐसे ही निकलता था. He had already addressed 9 election meetings since morning. सुबह से 9 मीटिंग्स वो अटेंड कर चुके थे. Been constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for the election. यानी कि कन्विंसिंग की बात हो रही है. This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. Now 1987 यहाँ पे याद रखेंगे, हरियाणा में इलेक्शंस हुए हैं, assembly elections. The state had been ruled by the Congress party lead government since 1982. 1982 से कौन सी पार्टी थी वहाँ पे? कांग्रेस. चौधरी देवीलाल देन अपोजिशन लीडर. चौधरी देवीलाल जो कौन थे? अपोजिशन लीडर थे. लीड अ मूवमेंट कॉल द नव्य युद्ध, है ना, नव्य युद्ध के नाम से उन्होंने एक स्ट्रगल फॉर जस्टिस एक चलाया था मूवमेंट. फॉर्म अ न्यू पार्टी, उन्होंने नई पार्टी का फॉर्मेशन किया था, लोक दल. नाउ व्हाट इज द पार्टी नेम? लोक दल. हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. अभी जो पार्टी है अपोजिशन पार्टी थी पहले, कांग्रेस के अगेंस्ट वो इलेक्शन में खड़ी हुई. इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी won the election. Now what promise is done by the Mr. Devilal? That said that if his party won the election, his गवर्नमेंट्स वुड वाइप अ लोन ऑफ अ फार्मर. उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो फार्मर्स का जितना भी लोन है वो क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा. और ए स्मॉल बिजनेसमैन का. ही प्रॉमिस दैट ही वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. उनका ऐसा कहना था ये करने वाली हमारी पहली गवर्नमेंट हो गई. नाउ दीज प्रोमिसेस आर द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन. The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by the देवीलाल promises. अब वो किससे अट्रैक्ट हुए? जो भी देवीलाल ने प्रॉमिस किए कि लोन सब माफ़ हो जाएगा. So when elections were held, they voted overwhelmingly in the favor of the लोकदल. अब इसी promises से खुश होकर उन्होंने क्या किया? लोकदल को, उसकी एलाइज जो थी उसके साथ जो पार्टीज थी उनको वोट दिया.
लोकदल एंड इट्स द पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 96। देखिए पहले पावर में कौन थी, कांग्रेस, नाउ कौन आ गई, लोकदल। उनको 90 सीट में से कितनी सीट्स मिली, 76 इन द स्टेट असेंबली। लोकदल अलोन वन 60 सीट्स। लोकदल की अकेले की कितनी सीट्स थी, 60 सीट, दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। कांग्रेस को सिर्फ कितनी सीट्स मिली, ओनली एंड ओनली 5। Once the elections result were announced, the sitting chief minister resigned. अब क्या होता है जब नए रिजल्ट आता है तो जो जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे वो रिज़ाइन करते हैं और नए जो भी मंत्री बनते हैं वो क्या लेते हैं, अपनी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं। सो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ द लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। अब जो मेजोरिटी पार्टी का हेड कौन हो गया, देवीलाल, उसे चीफ मिनिस्टर चुना गया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी अ न्यू चीफ मिनिस्टर। 3 days आफ्टर द इलेक्शंस रिजल्ट वर डिक्लेयर। 3 दिन बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे। ही बिकम अ चीफ मिनिस्टर। क्या बने वो, चीफ मिनिस्टर। एज सुन एज बिकम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशू द गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लॉ ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। और जिन्होंने प्रॉमिस किया था लोन का वो भी उन्होंने फुलफिल किया, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years। 4 ईयर तक उन्होंने रूल किया यहाँ पर, ठीक है। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। अब नेक्स्ट इलेक्शन कब हुए, 1991 में। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार उसे पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और नेक्स्ट टाइम कौन गवर्नमेंट में आई, फिर से कांग्रेस आई जिसने इलेक्शन जीता। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन कि इसमें कोई भी पार्टी विन कर सकती है जिसे भी लोग चाहते हैं। Now look this diagram, what is showing this about the political competition. Political competition, party A and party B. Find what is the work of the political competitions. They all they criticize each other, fine, and they want to attract the voters to give the vote to their party. वो सभी वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। किसी भी हद तक जाते हैं एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे की जितनी भी ड्रॉबैक्स है उन्हें लोगों के सामने लाना। इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन। सो पॉलिटिकल कंपटीशन इफ इट इज़ हेल्दी, अगर हेल्थी है तो बहुत बेनिफिट है डेमोक्रेसी के लिए। जस्ट बिकॉज इन पॉलिटिकल कंपटीशन एवरीवन गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, एवरीथिंग इज क्लियर, many concepts of the political party came to us, हम तक आती है चीज़ें due to the political competition. So it is the essential part of political competition. Now next page there is a activity. Do you know what is the last assembly, when is the last assembly elections was held in your state? Which other elections have taken place in your locality in the last 5 years? Write about the levels of election, national assembly, panchayat elections, when were they held, the election name and the designation, MP, MLAs or person who got the elected from the area. देखिए दोनों ही इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ पे, असेंबली इलेक्शंस भी हुए हमारे यहाँ पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके इलेक्शंस भी हुए हैं। तो ये आपको अपने क्राइटेरिया अपने एरिया का बताना है, कौन खड़ा हुआ था, किस पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट था, किसको मेजोरिटी मिली, कौन जीता, किसको कौन सी पोस्ट मिली। So do it yourself. Now next topic is came to us, why do we need elections? क्यों हमें elections की ज़रूरत होती है? So there is 3 or 4 points are given in the summary of this chapter. First, we need elections just because they can choose, through the elections we can choose who will make the law for them. हम elections होंगे तभी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे और तभी तो वो हमें क्या बनाएंगे, हमारे लिए क्या बना सकते हैं, लॉ। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। ये बताने के लिए कि कौन डिसीजन लेगा, किसको पावर दिया जाएगा, इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट्स एंड लॉ मेकिंग। जो गवर्नमेंट को लॉ करेगी, गाइड करेगी, ये सब चीज़ें किसके ज़रिए पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के जरिए। सो लेट्स रीड, इसको हम रीड करते हैं। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन द डेमोक्रेसी। रेगुलर इलेक्शन होते हैं एवरी 5 years, एवरी 5 years
we conduct the election. There are more than 100 countries in the world in which elections take place. देखिए हमारी जो कंट्रीज़ है, कितनी कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा में कहाँ क्या होते हैं, इलेक्शंस टेक प्लेस. चूज़ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. ये भी हमने पढ़ा कि ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जहाँ पर इलेक्शंस होते बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. एग्जाम्पल में हम किस किस को दे सकते हैं यहाँ पर, वी कैन टेक द चाइना का हमने एग्जाम्पल किया था, है ना. पाकिस्तान, जहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. सो यू कैन गिव द मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1. बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन अगर जब डेमोक्रेटिक नहीं है तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. लेट्स ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. हम इमेजिन करेंगे कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, इलेक्शंस के बिना क्या डेमोक्रेसी पॉसिबल है. नो पॉसिबल. A rule of people is possible without any election if all peoples can sit together every day and take the decisions. क्या ये पॉसिबल है कि सारे लोग रोज एक साथ बैठें, एक साथ डिसीजंस लें. नो. इंडिया जैसी मोस्ट पॉपुलस कंट्री में इट इज़ नॉट पॉसिबल. But as we have already seen in chapter 1 that this is not possible in any large community. कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है. Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. ना तो इतना टाइम किसी के पास होता है, ना ही नॉलेज. दोनों ही चीज़ें आई है. हो सकता है टाइम हो तो नॉलेज ना हो, नॉलेज हो तो टाइम ना हो एक मैटर्स पे डिसीजन लेने के लिए. देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. लोग किसके ज़रिए रूल करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए, ताकि उनके बिहाव पर वो डिसीजन ले सकें. इज़ देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे टू सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन. क्या ये पॉसिबल है कि हम इलेक्ट कर सकें विदाउट इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव को. पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड द एक्सपीरियंस. कई ऐसी रिप्रेजेंटेटिव है जिन्हें उनकी एज और उनके एक्सपीरियंस के बेस पर क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है. और अ प्लेस वेयर देयर आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज. देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टीज इन द डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है, ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है. बट लेट से दैट पीपल्स कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज क्लियरली. सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर एक्शन. तो ऐसी जगहों पर इलेक्शन की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन मोर डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी. क्या उसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे. आपके अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर पर्सन है, इट इज़ मोर एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल, जो भी है, पर हो सकता है मेरी नज़र में वो ना हो, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे. हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल्स लाइक रिप्रेजेंटेटिव और नॉट. किस तरह से फिर इलेक्ट करेंगे. हाउ डू इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विश ऑफ पीपल. कौन डिसाइड करेगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की इच्छा अनुसार काम करेगा. हाउ टू वर्क श्योर दैट दोज हु आर पीपल डू नॉट लाइक टू डू रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि वो भी दूसरों के जैसा नहीं होगा. दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट द रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू. अब ये हमारा यहाँ पर प्रोसेस है, फीचर है डेमोक्रेसी का. रेगुलर पीरियड टाइम के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और उसे हम चेंज भी करें रेगुलर इंटरवल. अगर हमें हमारी इच्छा है या उसने कुछ वर्क नहीं किया तो वी कैन चेंज ऑल्सो देम, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इलेक्शन. और इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं हम, इलेक्शन. Therefore elections are considered essential in our time for any representative democracy. हमारा टाइम भी बचता है और इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. फाइन. सो इलेक्शंस में हम वोट का यूज़ कैसे करते हैं, ताकि हम हमारे लिए वो लॉ बना सकें, जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकें, और जो गाइड है गवर्नमेंट को, जो है पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट्स एंड द लॉ मेकिंग. सो नेक्स्ट लेक्चर I will explain about the what make an election democratic. So it's all about today. We have discussed about the example of Haryana, and next we will discuss about the democratic election. Thank you and have a nice day.